Hello dear students, welcome to your IT class. We are learning about the various word processing options. In the previous video, we studied about the text formatting options, that how we process the text, how can we apply the different font type, font size, font face. Okay, so in the next video, in this video we are going to learn about the inserting various graphical objects और illustrations. लाइक हम अपने जो भी हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें कोई भी क्लिप आर्ट, कोई भी पिक्चर, कोई भी शेप जो है कैसे इंसर्ट करने वाले. ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंसर्ट टैब. As you all know, whenever we have to insert any object in your document, we use the insert tab. So first of all, create your text document and click at the insertion point where you have to insert the graphical object or any illustration. Okay, then go to insert tab and then in the illustrations group, in the illustrations group, click on the required option. Like first we are going to study about the insertion of clip art, कि हम कोई भी क्लिप आर्ट जो है अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिप आर्ट क्या है? कोई भी ग्राफिकल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी थिंग लाइक कंप्यूटर, लाइक फ्लावर, बर्ड्स, जो भी हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई इमेज चाहिए होती है, देन वी गो टू क्लिप आर्ट. आइदर दे आर स्टोर्ड इन द software or we can use the online help from the system. Okay, so first of all, open the text document, go to insert tab and in the illustration group click on clip art option. Okay, in the clip art, as we click on the clip art option in the illustration group, suppose this is your window, and here you have the toolbars and your different menus. This is your text area. As you click on the clip art, on the right side or the right pane of your window, your clip art navigation pane or you can say dialog box appears. In the search bar you can enter the keywords. लाइक जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है, एंटर योर कीवर्ड्स. लाइक आपको कंप्यूटर की इमेज चाहिए, देन टाइप हियर द वर्ड कंप्यूटर एंड देन नेक्स्ट टू इट you have go button. Click on the go. As you click on the go button, you have various images related to your keywords. Select any of the clip art from the available options and at the insertion point, सपोज जहाँ आपका इंसर्शन पॉइंट था वहाँ क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड क्लिप आर्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द वे टू एंटर योर क्लिप आर्ट इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. Suppose if you don't get the required option, then you can use the online office help. Okay, from there you can search for the required clip arts. Next way to insert any image in the text document is from file browser. You want to insert a picture from your system. ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज आपके सिस्टम में जितने भी पिक्चर्स स्टोर्ड हैं उनमें से आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करें. ओके, फॉर दैट पर्पज़ आप क्या करेंगे, सेम वे ओपन योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, go to insert tab and in the illustration group click on picture. जैसे ही आप क्लिक करेंगे your file browser will be open and in the file browser you can select the required image that you want to insert in a text document. Suppose by default आपका जो file browser में फाइल ओपन होगी वो डॉक्यूमेंट्स में ओपन होती है स्टोर.
but your system is in some other directory or other drive. तो आप क्या करेंगे, you will switch the drive from the left side navigation pane and in the particular drive select your required image and then click on the insert button at the end of file browser. Okay, तो आपका क्या होगा, पर्टिकुलर पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में. नेक्स्ट इज द वे टू इंसर्ट शेप्स. कि कोई भी आप नई शेप जो है अपने डायग्राम में, सॉरी अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो है इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई भी सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगेन यू हैव द इलस्ट्रेशन ग्रुप इन द इंसर्ट टैब. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर इंसर्शन पॉइंट और क्लिक एट द इंसर्शन पॉइंट. इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट करवाना है. ओके, आफ्टर क्लिकिंग एट द इंसर्शन पॉइंट ओपन द इंसर्ट टैब एंड इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक ऑन शेप्स बटन. Shapes command. As you click on the shapes command, a drop down list of various shapes is opened, and in the shape we have like recently used shape, lines, rectangles, basic shapes like oval, rhombus, square, or whatever, like arrow keys and all this. So we have a long list of different shapes. From these shapes enlisted in the drop down list, we can select the required shape, and as we click on the shape, that particular shape will be inserted in the text document at the point of insertion. Okay, but the point arises if the shape will be inserted of the required size. Like आपको जो है वो enlarge करना है या small करना है, तो आप क्या करेंगे, as you insert the shape, जैसे आपने कोई भी रेक्टेंगल जो है वो इंसर्ट किया. ओके, तो आपके जो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनसे आप क्या कर सकते हैं, या फिर जो आपके साइड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपके जो है रिसाइजिंग पॉइंट्स आप जिनको बोल सकते हैं, आप क्या करेंगे, इनको क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे. अगर आपको इनलार्ज करना है तो देन ड्रैग आउटवर्ड. इफ़ यू हैव टू रिड्यूस द साइज देन ड्रैग इनवर्ड. अगर आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों रिड्यूस करनी है देन कॉर्नर पॉइंट से जो है वो रिसाइज करें. इफ़ यू वांट पर्टिकुलर वन साइड ऑफ द शेप, देन जो साइड रिसाइजिंग पॉइंट्स हैं उनसे आप ड्रैग करें, आइदर रिड्यूस और इंक्रीज द साइज. वन वी हैव रोटेशन पॉइंट, that is normally green in shape or sometimes it is blue in shape, that you can use. It has one arrowed shape. You can use this rotation point to rotate the image. Okay, so you can apply these different operations on your shape. Next is our adding text to the shape. So अगर आप उस जो भी शेप आपने इंसर्ट की है उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द शेप. इसके लिए टू ऐड टेक्स्ट टू द शेप, क्लिक द शेप. देन क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे एन इंसर्शन पॉइंट विल अपीयर, एंड as we start typing that text will appear on the particular shape. Okay, next is converting into another shape. आप एक शेप को जो है दूसरी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पज़ आप क्या करेंगे, एक्टिवेट दैट शेप. उस शेप पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो आपके जो रिसाइजिंग पॉइंट है वो आपको व्यूएबल हो जाते हैं. अगर आपके रिसाइजिंग पॉइंट विजिबल हैं, दैट मीन्स योर शेप इज़ एक्टिव. तो आप क्या करेंगे, क्लिक एक्टिवेट दैट शेप एंड गो टू शेप्स ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप इन द इंसर्ट टैब एंड देन सेलेक्ट द डिजायर्ड न्यू शेप. दैट पर्टिकुलर शेप विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यू शेप. ओके, क्या प्रोसेस होगा इसका, इलस्ट्रेशन ग्रुप, and after going to illustration group, in the shape command select the new shape.
ओके, तो वहाँ से आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रीवियस शेप है उसकी जगह पे जो नई शेप आपने सेलेक्ट की है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगर आप उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो क्या होगा, जैसे ही आप कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं, जैसे आपने नॉर्मली इंसर्ट की तो आपका एक टैब अपीयर हो जाता है, फॉर्मेट टैब। जैसे आप कोई भी टूल इंसर्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, तो उसकी डिज़ाइन टैब के साथ साथ फॉर्मेट टैब आपकी ऑटोमेटिकली ऐड होने जाती है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी फॉर्मेट टैब अपीयर होगी वहाँ आपका मोर ऑप्शन अवेलेबल होगा। वहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी आपको शेप स्टाइल्स में। क्या ऑप्शन होगा आपका, शेप स्टाइल्स का जो ग्रुप है उसमें आपका मोर का ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी जो भी शेप आपने इंसर्ट की है उसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे अगर आप फॉर्मेट टैब से उसका आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, इफेक्ट्स चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी फॉर्मेट टैब अपीयर हुई है उसमें क्या होगा आपका, दिस इज फॉर मॉडिफाइंग आउटलाइन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको आउटलाइन मॉडिफाई करनी है शेप की, देन फॉर्मेट टैब ऑफ द शेप, देन इन द फॉर्मेट रिबन we have shape outline command, shape outline command। जैसे आप क्लिक करेंगे you will get a drop down list, and from the drop down menu we can use various outline options, like we can change the color of outline, we can change the weight means thickness, that how thick our outlining of the shape is, or we can change the pattern of our outlining, that is a solid line appears or the dashed one line appears in the shape. This way we can modify the outline of our shape. So these are the various operations we can use in the illustration group of our insert tab, like inserting shape, clip art, or we can use the picture from the file browser. Okay, so these were the various operations that we can perform in the insert tab illustration group. Thank you class.